आपने निकाला है। तो हम देखते हैं इसको कि हम कैसे इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। मुझे लगा अच्छा जी, तो कंपनी अकाउंट्स का हमारा टॉपिक है। कहते हैं जी एफ लिमिटेड इज ए लार्ज रिटेल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अक्टूबर नवंबर 1723। देखिए, जब कोई भी कंपनी, whenever the company is going to launch or subscribe shares to the general public, company used to give advertisement in the newspaper, in periodicals, in journals, that we are issuing our shares. So those who wants to purchase our shares, they can submit their application. Those people who are interested in purchasing the shares of the company, they used to go to the same particular bank in which the accounts of the company is maintained. They used to fill a form, which is known as share application form. Along with the amount of shares, they submit the amount in the company's bank account. And if the company wanted to issue the share to them, either balloting or first come first serve, whatever the policy of the company is, shares will be subscribed to the general public and they will become the shareholder of that company. IPOs के हवाले से ही हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे आज कि IPOs को कैसे हम डिस्कस करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर 17-21 का हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन है, आपको भी समझा सकते हैं, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ दिस क्वेश्चन हैज कम इन द पेपर्स ओनली ट्वाइस, बट आई एक्सपेक्ट दैट दिस मे कम इन दिस पेपर इन द अपकमिंग पेपर आल्सो। इट इज अ पॉसिबिलिटी because this is an important part of company accounts, important chapter of company accounts. There is a special account which we used to use in this to solve this particular question, which is known as share application account or shareholding account. shareholding account or share application account. This account is just opened to collect the amount from the shareholders before allotting them shares. This account is open, yes, shareholding account or share application account. This account is open to collect the amount from shareholders on applications. And the remaining amount will be collected at the time of allotment. This account, share application account or shareholding account, is open to collect the amount from shareholders on application, and the remaining amount will be collected at the time of allotment. शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम। F Limited is a large retail company. On 1st February, the company invited applications for 50,000 ordinary shares of one each at a issue price of 1.2. तो कंपनी लोगों से कह रही है कि आओ, come and you are invited to purchase the shares of this company. And how much shares we are expecting to issue? How much shares company is basically issuing? 50,000 shares. एक शेयर कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 1, लेकिन कंपनी शेयर इशू कितने कर रही है? 1.2 का, यानी 0.2 हमारा क्या हुआ ज़हीन? वो प्रीमियम है, दैट इज शेयर प्रीमियम। कंपनी ₹1 वाला शेयर 0.2 प्रीमियम पर फरोख्त कर रही है, प्रीमियम पे इशू कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड। पेबल ऑन एप्लीकेशन 0.5 है, पेबल ऑन अलॉटमेंट 0.7 है। एप्लीकेशन के वक्त हमें कितने पैसे मिलेंगे? हर एक शेयर की प्राइस में से 0.5 मिल जाएंगे और 0.7 हमें कब मिलेंगे? अलॉटमेंट में। अब मुझे ये बात बताएं, सर समझ नहीं आई मुझे, जरा 0.5 और 0.7 को जरा ऐड करो, सोबत तो क्या बनता है? 1.2. That is why share application account is being used. What is the reason? We are not collecting the total amount from the shareholders. We are collecting part of the amount from the shareholders at the time of application, and the remaining amount is going to be collected at the time of allotment. That's why we are going to use a special account called share application account or share holding account, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि शेयर इशू करते वक्त आपने शेयर के 2 हिस्से कर लिए, एक एप्लीकेशन के वक्त रिसीव कर रहे हैं और एक अलॉटमेंट के वक्त रिसीव कर रहे हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर, इधर लिखिए जी। व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड in excess of shares issued,
when the amount is received in excess of shares issued, when the amount is received in excess of share issued, the excessive share application money, the excessive share application money is supposed to be refunded. The excessive share application money is supposed to be refunded back to the shareholders. The excessive share application money is supposed to be refunded back to the shareholders. यानी कि अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हैं शेयर होल्डर से, कितने शेयर आपने इशू किए 50,000, जबकि आपको रिस्पांस कितने शेयर्स की आ गई है, उससे ज्यादा शेयर लोगों ने पैसे जमा करवा दिए हैं, तो आपको जितने ज्यादा लोगों ने पैसे दिए उतने पैसे आपको लोगों को वापस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उतने शेयर आप इशू कर ही नहीं सकते। आपने 50,000 शेयर इशू कंपनी ने किए तो कंपनी 50,000 लोगों को शेयर अलॉट कर सकती है ना। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको जिसके पैसे रिसीव हो गए हैं उन लोगों को, ऊपर वाले लोगों को या बेल्टिंग के थ्रू आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे, पे बैक करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप शेयर सिर्फ 50,000 इशू कर सकते हैं। ऑल मनीज रिसीव्ड in respect of the share issue was posted to the bank account and a share issue holding account until the shares were allotted. Okay ji? At the time of allotment, transfers were made to the share capital account and the share premium account and monies were returned to the unsuccessful applicants. जो पैसे unsuccessful applicants हैं उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन को सॉल्व करना। In accounting, every question is supposed to be solved through entries. So we are supposed to pass entries, obviously. The first entry which we are going to pass is bank account debit or shareholding account credit. Bank account debit and shareholding account credit हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर होल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। जरा मुझे बताइएगा कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं मुझे। नहीं, शुरू में मुझे पैसे कितने रिसीव हुए हैं, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हमें? 65,000 लोगों से पैसे मिल गए। मल्टीप्लाइड बाय करेंगे आप किससे? 0.5 से। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा सवाल पे जाते हैं वापस। कहता है जी एप्लीकेशन के वक्त हम कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं? 0.5। ओ भाई, हम जब शेयर इशू करते हैं तो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आ जाओ हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जिसने जमा करवाने हैं एप्लीकेशन के साथ जमा करवा दो, हम उनको शेयर इशू करने के लिए तैयार हैं। बाद में पता चला कि हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है शेयर इशू किए 50,000 के, लोगों ने एप्लीकेशन पैसों के साथ कितने शेयर की जमा करवा दी है? 65,000 शेयर्स की। तो आ जाते हैं 65,000 शेयर पर हमें कितने हिसाब से पैसे मिल रहे हैं? 0.5 के हिसाब से। 65,000 इंटू 0.5 कितने पैसे बन गए भाई? 32,500। ये हम लिख लेंगे जी 500। राइट साइड पे भी आपका आ जाएगा 32,500। अब जितने लोगों को ज्यादा पैसे मिले हैं उनको आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो उसकी एंट्री करेंगे। शेयर होल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि भाई जो ज्यादा पैसे रिसीव हुए हैं हमें, उतने लोगों को तो हम शेयर इशू कर ही नहीं सकते, तो हमें उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। कितने लोगों को? 65,000 लोगों की शेयर इशू एप्लीकेशन आ गई है, जबकि हम शेयर कितने इशू कर सकते हैं? सिर्फ 50,000। 15,000 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 7,500। इन लोगों को पैसे में वापस करने पड़ेंगे 7,500। उसकी एंट्री करेंगे शेयर होल्डिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, पैसे वापस कर दिए। अब बाकी जो पैसे आए हैं उन लोगों को हम शेयर इशू कर देंगे। तो शेयर होल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। बाकी अमाउंट से जो हमारी कितनी बचेगी? 50,000 इंटू 0.5। तो सॉरी, वो तो पहले रिसीव हो गया ना, 0.5 तो हमें पहले रिसीव हो गया। अब मजीद अमाउंट जो है पहले वो रिसीव करेंगे। उससे पहले वापस चलते हैं हम। देखिए पेबल ऑन एप्लीकेशन कितना था? कितने शेयर की रिस्पांस आई? 65,000 इंटू 0.5 किया, पैसे रिसीव हो गए। अब जो ज्यादा पैसे रिसीव हुए थे 15,000 शेयर्स के, उन लोगों को पैसे वापस कर दिए। अब आ गया पेबल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं हम? 0.7।
अब वो पैसे रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं। एंट्री तो यही होनी है, क्या भला, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर होल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। दैट इज, यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज पेबल ऑन अलॉटमेंट। कितने शेयर्स हैं जी हमारे? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 0.7 बाद में मिल रहे हैं ना। अब आपका सवाल उठता है सर यहाँ पे 65,000 लिखे, और भाई 65,000 एप्लीकेशन के वक्त जो पैसे आए थे ना लोगों के ज्यादा, वो उनको वापस भी कर दिए, बाकी 50,000 ही बचते जिनसे आप अलॉटमेंट के वक्त पैसे लोगे। अलॉटमेंट की डेट अलग है, एप्लीकेशन की डेट अलग है, दोनों डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स पर हो रहे हैं। एप्लीकेशन के वक्त जब मैं ज्यादा पैसे गलती से वसूल कर लिए थे वो तो वापस कर दिए, बाकी पैसे हम 50,000 लोगों से वसूल करेंगे जिनको हम असल में शेयर इशू करने के काबिल हैं या कर रहे हैं। कितनी अमाउंट आ जाएगी जी? 35,000। ये आ जाएगी 35,000 और शेयर होल्डिंग अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 35,000 से। अब हम इन लोगों को शेयर अलॉट कर देंगे तो पैसे रिसीव किए ना, तो डेबिट हो जाएगा जी आपका शेयर होल्डिंग अकाउंट से जी 50,000 इंटू 1.2 से, या आप दोनों जो शेयर होल्डिंग अकाउंट से खत्म करने के लिए टोटल अमाउंट से डेबिट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यानी 35,000 से क्रेडिट हो रहा है, फिर 7,500 से डेबिट हो रहा है और 15,000 से क्रेडिट हो रहा है। टोटल कितने बनेंगे आपके? 60,000 आपका आ जाएगा जी। 35,25 60,000 जी डेबिट हो गया। क्रेडिट आप किसे करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को, शेयर आप इशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? हमेशा पार वैल्यू से, 50,000 इंटू 1, इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी जी? 50,000। और क्रेडिट आपका होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट, 50,000 इंटू 0.2, वो आ जाएगा जी आपका। सर ये तो हम कुछ और ही कर रहे हैं भाईजान, ये सवाल थोड़े डिफरेंट हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आईपीओ की बात कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है, तो फर्स्ट टाइम जो कंपनी शेयर इशू करती है तो लोगों को इनवाइट करती है कि एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा करवाएं। लोगों ने एप्लीकेशन के साथ हमें पैसे कितने जमा कराने थे? 50,000 शेयर्स के। लोगों ने एप्लीकेशन पर 0.5 के साथ, यानी 1.2 में से 0.5 जमा करवा दिए, लेकिन कितने शेयर्स के? 65,000 शेयर। ज्यादा एक्सेसिव शेयर एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास आया उसे रिफंड करना पड़ेगा आपको, तो 15,000 इंटू 5 से आपने रिवर्स एंट्री पास कर दी, पैसे वापस कर दिए। अब हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए हैं? 50,000 शेयर के 0.5 के हिसाब से। इसका मतलब है 50,000 शेयर के 0.5 के हिसाब से हम पैसे रिसीव कर चुके हैं, बाकी कितने रह गए? 0.7, क्योंकि 1.2 टोटल है, तो 50,000 इंटू 0.7 मैंने बाकी भी रिसीव कर लिए, और उसके बाद मैंने शेयर होल्डिंग अकाउंट को खत्म कर दिया। शेयर होल्डिंग अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, आप अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस नील आएगा। 50,000 इंटू 1.2 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 1 से पार वैल्यू से, और बाकी शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा 50,000 इंटू 0.2 से 10,000 से। These are the entries which you are supposed to pass in preparing these in this particular question. अब मैं आपको शेयर होल्डिंग अकाउंट बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए इस अकाउंट का मकसद क्या है। इस अकाउंट का मकसद सिर्फ स्टार्ट में पैसे कलेक्ट करना है, क्योंकि शुरू में आप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने पूरे पैसे तो कलेक्ट किए नहीं। आपने तो 1.2 में से कितने पैसे लिए? सिर्फ 0.5। आप टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम इसका अकाउंट अगर आप बनाओ तो पहले शेयर होल्डिंग अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। कितने से? 32,500 से। फिर शेयर होल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 7,500 से। इसकी वजह से? बैंक की वजह से। फिर देखिए शेयर होल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 35,000 से। इसकी वजह से जी मेरे भाई? बैंक की वजह से। अकाउंट बना रहा हूं। फिर शेयर होल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 60,000 से। इसकी वजह से? नो नो, अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। 50,000 से डेबिट हो रहा है शेयर कैपिटल की वजह से, और 10,000 से डेबिट हो रहा है शेयर प्रीमियम की वजह से। दोनों का टोटल करने आप दोनों साइड्स का। अगर आप देखें तो बेटा ये आपस में बराबर आएगा। टोटल कर लें, ये आपका बनेगा 67,500 ये आ गया,
वो भी आपका आ जाएगा 67,500. इट हैज कम इक्वल. दैट्स इट. बराबर आ गया. इसका मतलब है शेयर होल्डिंग अकाउंट ज़हीम जो मैंने ओपन किया था रोहान, वो मैंने ओपन किया था पैसे कलेक्ट करने के लिए. एट द एंड जाके शेयर होल्डिंग अकाउंट हमारा क्या हो गया है? नील. इट हैज बीन अबॉलिश्ड. अबॉलिश हो गया ना. दिस इज अ फिक्टिशियस अकाउंट. दिस इज अ फिक्टिशियस अकाउंट. दिस इज ओपन एंड देन क्लोज फॉरएवर. इट हैज अ बैलेंस, नील बैलेंस. हमने सिर्फ ओपन किया था. क्यों? ओ भाई इसलिए कि आप शुरू में पैसे कलेक्ट सारे नहीं कर रहे. 1.2 में से 0.5 पहले रिसीव कर रहे हो, फिर उसमें से 0.5 से 15,000 शेयर के ज्यादा आ गए, वापस किए, फिर 0.7 रिसीव किए उन्हीं के शेयर पर, और फिर आपने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को पास कर दिया. ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है. और इसमें एक स्पेशल अकाउंट यूज किया था, इसका नाम क्या है? शेयर होल्डिंग अकाउंट या एप्लीकेशन अकाउंट भी कहते हैं इसको. इस नाम से भी पेपर में आ सकता है. अब इसमें आपने बनाने हैं 4 किस्म के अकाउंट्स. एक अकाउंट क्या बनाना है? शेयर होल्डिंग अकाउंट मैंने बना लिया है. आगे नेक्स्ट देखें. शेयर होल्डिंग अकाउंट बन गया. नेक्स्ट क्या बनाना है? फिर चलें जी बनाते हैं जी इसी क्वेश्चन के ऊपर. तो मैं बनाऊंगा जी अपना कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट. जो भी अकाउंट बनता है बेटा एंट्री से ही बनता है ना, तो ये भी एंट्रीज के थ्रू ही बनेगा. क्या मसला है? कोई मसला ही नहीं है. एंट्रीज बनाते जाएंगे और अकाउंट बनता जाएगा ऑटोमेटिकली. आप देखिए जी बैंक पहले क्या हो रहा है जी? बैंक भाई डेबिट हो रहा है. कितने से डेबिट हो रहा है? 32,500 से. कैप्चर लिख दूंगा मैं 32,500 जी. किसकी वजह से? शेयर होल्डिंग की वजह से. उल्ट नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है. कंपनी के हिसाब से ये सही हो रहा है, वो शूट कोई नहीं है. ठीक है जी. उसके बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 7,500 से. किसकी वजह से? शेयर होल्डिंग की वजह से. उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 35,000 से. इसकी वजह से, शेयर होल्डिंग की वजह से. दैट्स इट. और तो बैंक अकाउंट यूज ही नहीं हुआ. टोटल कर देंगे बैंक अकाउंट का, उसका करंट बैलेंस निकल आएगा हमारा. तो कितना आ जाएगा आपका? 67500. इधर भी आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 67500. क्रेडिट में कितना आ जाएगा? 60,000. असल में हमें पैसे कितने मिले हैं? क्योंकि बाकी पैसे हमने 7,500 वापस कर दिए. 60,000 असल में हमें पैसे मिले हैं. तो हमें कलेक्ट किए 50,000 शेयर कैपिटल का और 10,000 शेयर प्रीमियम का. वो हमारा वही आ रहा है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हम बनाएंगे किसका अकाउंट? शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर लगते हैं जी हम शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट जी. सर ये 8 पेज का सवाल है. शेयर कैपिटल इसमें 2 बार एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है. ये सही है? मेरा ही बिल्कुल सही है. इसका तरीका ये है कि बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत कम आया है, छोड़ दो इसको. इसको करने में मुझे परेशानी होगी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं. बेटा कोई और सवाल देखते हैं. बेटा ये छोड़ो इसको, ये नहीं आना. सवाल की तरह यही बता रहा हूँ. यही करते थे जो नहीं आता ना, कहते ओके लेट्स मूव ऑन. अनफॉर्चुनेटली टीचर आपके जीरो ही लगेंगे. मैं आपको सच बता रहा हूँ. मैं क्यों समान नहीं लगता आपको, शादी नहीं लगता. मैं करते तो ऊपर के लगे मिडिल लेवल पे. अच्छी लेट आते हैं क्या? जी एंट्री से. देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बात बतानी है आपको. बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हो सकता था, इस सवाल में नहीं है. लेकिन अगर होता तो हम इसमें रिकॉर्ड करते ब्रॉड डाउन. क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ब्रॉड डाउन नहीं लिखते? क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखते थे हम? बैलेंस वही बैलेंस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अगर होता तो. लेकिन नहीं है फिलहाल, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं. शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? शेयर होल्डिंग की वजह से. जी ठीक है, कर दिए.
शेयर होल्डिंग की वजह से कितना आ जाएगा जी 50,000। तो आपको पता है शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखते हैं हम, 50,000 से ही आना है आपका जी। 50,000 यहाँ शेयर होल्डिंग शेयर कैपिटल से ही आना है। 50,000 यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा 50,000, क्योंकि और शेयर कैपिटल अकाउंट तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, आपका कैरेट ऑन आ जाएगा यहाँ पर 50,000। और ये नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। पर जगह नहीं है, हमने ब्रॉड डाउन लिखना है, ब्रॉड डाउन बन जाएगा ना नेक्स्ट ईयर का। ब्रॉड डाउन लिखना जरूरी है, नंबर कट जाएंगे। इसमें भी लिखना है, बैंक में, वो बैंक का पूछ रहे शायद, बैंक में लिख देता हूँ मैं, लिख सकता शेयर कैपिटल का, जगह नहीं मेरे पास, ना ब्रॉड डाउन आना है, आपने लिखना है लास्ट में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, नहीं। तो आ गया, लेकिन मैं तो चाह रहा था वो समझ रहे हैं। अब हमने अकाउंट बनाया है जी नेक्स्ट, इसका जी शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, अब उसकी नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं, उससे हम बना लेते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं हम जी, शेयर प्रीमियम अकाउंट हम बनाते हैं जी। अब लास्ट अकाउंट, 4 अकाउंट बनते हैं इसमें, कौन कौन से, शेयर होल्डिंग अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट और बैंक अकाउंट। सवाल आएगा तो ध्यान में याद रखिएगा भाई, 4 अकाउंट मैंने बनाने हैं। और सवाल देगा नहीं ऐसे, सवाल किससे करना है आपने, एंट्रीज से, गलती नहीं करनी। एंट्रीज के बगैर किया तो भाई समझ जाए, फिर गलत हो जाएगा सवाल आपका। सवाल गलत हो गया तो बस पे कुछ नहीं बचना। कई बच्चे एंट्रीज के बगैर कोशिश करते हैं, ऐसी कोशिश करने की जरूरत नहीं है जी। तो ये बैंक आ जाएगा जी आपका। शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट हो रहा है जी, बैंक की वजह से हो रहा है ना, ओ सॉरी शेयर होल्डिंग की वजह से हो रहा है। कितने से, एंट्री में 10,000 है ना, यही आएगा, टोटल आ जाएगा आपका, आपका क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि आपका प्रीमियम है ही इतना, वही क्रेडिट में आना है जी। लाजमी ब्रॉड डाउन लिखना है। क्या हो गया है, शेयर प्रीमियम हमारा रिजर्व अकाउंट है, इसमें से हम पैसे निकाल के बोनस शेयर इशू करते हैं, इसमें से हम राइट ऑफ करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिवेंचर के पैसे, डिवेंचर छुड़वाने के लिए, डिवेंचर करवाने के लिए पैसे शेयर प्रीमियम में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, 10,000 और ये नेक्स्ट का बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन 10,000। दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि आपने एक और सवाल में करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो भी सारा हमारा चल रहा है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं, कि इस वक्त हमारा शेयर कैपिटल कितना मौजूद है हमारे पास। 50,000 का शेयर कैपिटल हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर हम देखें सवाल के हिसाब से, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। इसमें यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, आप पूछने मसला है तो। अगर एंट्री समझ नहीं है मैं दोबारा समझा देता हूँ। एंट्री समझ नहीं, दोबारा बता दूं एंट्रीज। ओके ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एंट्रीज कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन एंट्रीज के अंदर एक नया अकाउंट यूज हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना ना। और वो अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए हमेशा एंड पे, नील। शेयर होल्डिंग अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो ओपन इसलिए करते हैं क्योंकि पैसे पहले रिसीव कर रहे हैं, शेयर बाद में इशू कर रहे हैं। तो आपको पैसों की कलेक्शन के लिए एक अकाउंट, फिक्टिशियस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। फिक्टिशियस अकाउंट का मतलब होता है जिसे हम बाद में खत्म कर देते हैं। फिक्टिशियस पर्सन है, आपका कोई सर पैर नहीं होता, खाली। अच्छा जी, आगे जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। एडिशन इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड क्वेश्चन। एफ लिमिटेड year end is 30th June. The following balances have been extracted from the books of account at 30th June 2016. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख का, शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया हुआ है 40,000 का, 8% डिबेंचर दिए हुए 2,80,000 के, बैंक लोन दिया हुआ है 1 लाख का। The following information is available. Always remember, changes in equity में चारों में से कौन सी चीज नहीं आती, गुजैल, डिबेंचर नहीं आते, नॉन करंट लायबिलिटी है, और वो भी नहीं आता, वो भी नॉन करंट है, नहीं आएंगे, नहीं आती। चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी सेक्शन होता है, इक्विटी सेक्शन बनाना पड़ता है जी। बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग दिया हुआ 2,10,000। On 30th November, a final ordinary share dividend of 2% was paid on all share in issue at that date. On 31st May, an interim dividend, share dividend 3% was paid on all the shares in issue. Profit for the year दिया हुआ है 30th जून को रीवैल्यू हो रही लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम 8,20,000 to 8,50,000। मेरा सवाल है आपसे,
क्या जो रिवैल्यूएशन हो रही है इसको हम बोनस शेयर के लिए पहले इशू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाद में हो रहे हैं ना, 30 जून को हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या बनाने कहता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कह रहा है बनाओ, तो बना लेते हैं, ठीक है, तो मसला ही नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स, सवाल हम रखते हैं अपना सामने ऐसे करके, और हम ऐसे खोलते हैं नई स्लाइड और हम बनाते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी जी, अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हो तो इसका मतलब है उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हो तो उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट आपने माइनस करना है, ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में सबसे पहले आपका आ जाएगा जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जल्दी जल्दी करवा मुझे, शेयर प्रीमियम, उसके बाद क्या है जी रिवैल्यूएशन रिजर्व, और क्या आ जाएगा जी रिटेन्ड अर्निंग्स। जगह जरा कम थी इसलिए मैं कोने में घुस गया, कोई बात नहीं, स्पेस के हिसाब से। सबसे पहले हम ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का पोर्शन ना लेते हैं, अच्छा पोर्शन होता है हमारा सबसे हैवी, और रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स का पोर्शन, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, बैलेंस, बैलेंस हमें दिया हुआ है, बैलेंस हमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, इस 4 लाख में पिछले 50,000 वाले शामिल हैं। सर कैसे पता चला आपको, वापस देखो, ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं सारे, ये किस डेट को बना रहे हैं, चेक करें जरा किस डेट को है। ये तो फरवरी 2016 की बात कर रहे हैं, ये अकाउंट बन रहे हैं फरवरी 2016 की, फरवरी 2016। हम इस वक्त किस डेट पे खड़े हुए हैं, 30 जून 2016। इसका मतलब है 4 लाख में 50,000 वाले शामिल हैं, ऑलरेडी एडेड हैं। समझ आई बात की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये बच्चा गलत ना कर दे कहीं। तो लिखते हैं सबसे पहले बैलेंस, कितना आ जाएगा जी इधर हमारा 4 लाख। शेयर प्रीमियम हमारा कितना है, इस शेयर प्रीमियम में पिछला प्रीमियम ऑलरेडी शामिल है, एडेड है, जो हमारा 10,000 का निकल रहा था, 30 और 10 40 में शामिल है, ऐड नहीं करना आपने। 40,000 आ जाएगा जी आपका शेयर प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों को, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी का मैंने आपको बताया था सवाल इस तरह के पेपर में आना है, छोटा सवाल, छोटा का मतलब यानी चेंज इन इक्विटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी हमारा, डिबेंचर है, ये तो आने नहीं है, बैंक लोन भी नहीं आने, रिवॉल्यूशन रिजर्व तो भी बनना है 30 जून को। रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी आ जाएंगी, बैलेंस ऑफ रिटेन्ड कितनी है, 2,10,000। हमने बैलेंस लिख लिया। सबसे पहले अल्लाह के फजलो करम से हमारा यहाँ पे क्या आता है जी, प्रॉफिट। कोशिश करते हैं पहले प्रॉफिट ही लिखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, हमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 65,000। वो हम कहाँ में ऐड करेंगे, रिटेन अर्निंग कॉलम में जाएगा भाई, 65,000 विल गो इन रिटेन अर्निंग्स कॉलम। उसके बाद हम कर लेते हैं रिवैल्यूएशन, इसकी हो रही है, बिल्डिंग लिख लेता हूँ ना मैं स्मॉल करके। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितनी अमाउंट आ जाएगी, वापस जाते हैं सवाल पे, देखें बिल्डिंग हो रही है 8,20,000 8,50,000, रिजर्व कितने क्रिएट हो रहे हैं, 30,000 का रिजर्व क्रिएट हो रहा है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैं लिख दूंगा 30,000। एक बच्चे ने सवाल किया सर इसकी डेट तो बात की है, जी डेट बात की है, लेकिन पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सवाल पे, क्योंकि शेयर को इशू है, शेयर को इशू नहीं हो रहे। नेक्स्ट आपने डिविडेंड पे करना है, देखिए डिविडेंड एक 30 नवंबर को पे कर रहे हैं हम। फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड 2015 को 2% वाज पेड ऑन ऑल शेयर्स इन इशू। ये कब हो रहा है, 30 नवंबर 2015, तो तब तक उस वक्त तो सिर्फ पिछले साल के शेयर थे, 30 नवंबर 2015। ये लार्ज ऑन 1st November द कंपनी invited application for 50,000 ordinary shares
1 फरवरी 2016 है। 2015 में कैसे खुला? जी बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑन 30 नवंबर 2015 को तुम शेयर इशू कर रहे हैं तो पहले से पड़े हुए थे ना। 16 में सिर्फ वही इशू है जो 50,000 वाले हैं। तो फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ऑफ 2 वाज पेड ऑन ऑल द शेयर इशू एट दैट डेट। तो वो 3,50,000 रुपए निकालेंगे आप। कितने 3,50,000 रुपए कितना आ जाएगा? 2% निकालो कितना आ जाएगा? 4,50,000 वाले बाद में ऐड होंगे ना। 30 नवंबर को वो इशू नहीं हुए। तो 3,50,000 पे हम निकालेंगे 2%। 3,50,000 का 2% वो आपका आ जाएगा कितना? 60,000। हम क्या पे कर रहे हैं? ऑर्डिनरी डिविडेंड। शेयर निकालने की जरूरत नहीं है इसलिए कि जब परसेंटेज दी हो, 3.5 लाख का 2%। जब परसेंटेज हो तो परसेंटेज 3% तक 2%। जब परसेंटेज दी हो सोबत तो हम डायरेक्टली परसेंटेज अमाउंट पे अप्लाई करते हैं बिकॉज दैट इज नॉट गिवन पर शेयर नहीं है, अमाउंट पे अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा रिटर्न अर्निंग कॉलम में से क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 7,500। ओके, ऑर्डिनरी डिविडेंड लिख दें, फाइनल लिख दें, एक ही बात है, लेकिन ऑर्डिनरी लिखा हुआ है तो ऑर्डिनरी ही यूज करें। आगे आपका आ जाएगा इंटरम डिविडेंड। हाँ फाइनल है तो बस फाइनल लिख दें। उसके बाद आपका आ जाएगा जी इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं जी देख लेते हैं। इंटरम डिविडेंड वो कह रहा है जी द इंटरम डिविडेंड 3% was paid on all shares in issue at that date 31st मई 2016। तब वो इशू हो चुके थे तो 4 लाख पे देंगे 3%। वो आपका आ जाएगा जी 12,000 और डिविडेंड आपके आ जाएंगे 7,000 के, हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इंटरम डिविडेंड आपका आ जाएगा जी 12,000 के। That's it। और कुछ चीज देखते हैं क्वेश्चन में दी हुई है कि नहीं दी हुई। आगे कहते हैं रिवोल्यूशन भी हमने कर ली है, चेंज इन इक्विटी कहता है बना दी, बस और तो कुछ नहीं है, टोटल कर लें इसका। समझ आ रही है ना? इसमें जो है उनको समझ आ रही है, तो मसला है तो पूछ सकते हैं आप। रिवैल्यूएशन कम्युनिकेटेड में डाल देंगे, हैं? नहीं डालेंगे। रिजर्व तो अकेला अलग होता है मेरे भाई, कैपिटल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग तो रेवेन्यू रिजर्व में आती है। आपका शेयर कैपिटल कितना बनेगा? 4 लाख का। एक लिखने की मास्टर है बाद में 40,000 आ जाएगा जी। ये कितना आ रहा है यार? 56,000। ये हमने सॉल्व कर लिया है। हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट सब जो है वो आपको मैंने बनाकर दिखा दिए बड़े अच्छे तरीके से, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें पहले हमने शेयर जो इशू किए थे तो 4 लाख के जो बने हैं वो 50,000 शामिल करके हैं। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड हमने निकाला है 3,50,000 पे, लेकिन जो डायरेक्ट डिविडेंड है वो हमने निकाला है किस पे? 4 लाख पे। कितने परसेंट था जी? 3%। वो 12,000 आता है। देखते हैं सवाल में आगे क्या कहता है जी। कहते हैं जी डायरेक्टर ऑफ एफ लिमिटेड wishes to purchase a new retail store for 4 lakh. Then they are considering 2 different ways to raise the finance for the investment. Issue a further 4 lakh 8% debenture or make a right issue of 3,20,000 ordinary share of 1 each at a premium of 1.25. So explain one difference between debenture and ordinary shares. Debenture is a non-current liability. Ordinary shareholders are the owners of the business. They are the actual risk bearers. If the company is wind up, debentures are paid in the first instance. They are paid from सबसे पहले उनको पे करेंगे। Ordinary shareholders are paid at the end. सबसे end पे उन्हें पे करेंगे। Advise the director which method of raising finance you would recommend. Give reasons for your answer. तो 4 नंबर है, कहता है इसके आंसर भी आपने रीजन देने, और नीचे वो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी हमसे पूछ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 और 2, यानी कि काफी नंबर का सवाल था। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12 और 8 20 20 और 10 30 तो मैं सवाल कर रहा हूँ। पहला सवाल आया। अच्छा जी, अब 30 का तो नहीं आएगा इस चोरी नहीं होगी, ये सब कुछ है। चोरी हो गई सर, कंपनी में चोरी हमेशा होती है। क्या होता है? अच्छा जी, इशू है फर्दर 4 लाख कितना 1% बन जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, डिबेंचर अगर हम इशू करें तो उसका फायदा क्या है? बिजनेस विल बिकम रिस्कियर because secondly you have to pay interest costs, secondly you have to pledge some asset as security, you have to present your financial statements to the bank, you have to prepare proper set of financial statements, you have to make this, give this record to the bank. The bank feels good, then he is going to make us the loan, and loan will have, we have to pay interest costs on loan also. प्रॉफिट तुम्हारे पास है लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। अगर हम राइट शेयर इशू करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? डेफिनेटली आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बिजनेस की लिक्विडिटी इंप्रूव कर जाएगी बिकॉज के राइट शेयर इशू हम अपने पुराने शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हैं शेयर्स, राइट। सिर्फ राइट शेयर इशू करते हैं पुराने शेयर होल्डर्स को और मार्केट से कम कीमत पर इशू कर रहे हैं, कंपनी को फायदा है, कंपनी को अर्ली कैश मिल जाएगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचेगी कंपनी की, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का वक्त नहीं पड़ेगा ना, पेपर कॉस्ट बचेगी कंपनी की, एडवर्टाइजमेंट बचेगा कंपनी का, बच जाएंगे ना, और पैसे कंपनी को मिल जाएंगे जल्दी। अच्छा, लेकिन दूसरा नुकसान ये होगा जब शेयर इशू करते हैं, राइट शेयर इशू करेंगे तो लोग समझेंगे कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो मे बी कंपनी की जो मार्केट प्राइस है शेयर की क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, बिकॉज बैड इमेज विल गो इन द मार्केट। बट आई विल स्टिल गो विद द राइट शेयर्स बिकॉज इट इज द मोस्ट बेटर वे टू रेजिंग फाइनेंस, स्पेशली इन दिस करंट सिचुएशन, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट है उसके अंदर, कंपनी को भी बेनिफिट है, बिकॉज शेयर होल्डर विल रिसीव मोर डिविडेंड ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर्स आल्सो। नाउ company will resolve the liquidity problem, they will easily purchase, क्या कर लेंगे, 4 लाख का जो न्यू रिटेल स्टोर है वो बना लेंगे और उससे कंपनी के प्रॉफिट इन फ्यूचर में इजाफा भी हो सकता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मजीद ज्यादा मिल सकता है, शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड ज्यादा मजीद मिल सकता है, कंपनी की प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। वैसे भी हम लोन लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम पहले ही लोन ले चुके हैं, पहले ही कंपनी डिवेंचर और बैंक लोन से गिरी हुई है, इट इज बेटर देन राइट शेयर ऑप्शन। बेटा क्लियर है, समझ आ गई है क्लास में। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने एडवाइस भी कर दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, अक्टूबर नवंबर 16-23, ये आपने घर में करना है, इसमें आपने मैनेजमेंट लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, बिल्कुल जैसे पिछला किया था 10 नंबर का पार्ट जो मैंने करवाया था, अक्टूबर नवंबर 16-23। नंबर 17-23 रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बाद करवा देता हूं भाई। देखिए जी, कहता है लिमिटेड आल्सो ऑपरेट्स ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दे एक्सटेंडेड द फैक्ट्री प्रीमिसेस, एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड द फॉलोइंग: बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस टू कंस्ट्रक्ट एक्सटेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स टू एग्जिस्टिंग रूफ, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स टू एग्जिस्टिंग रूफ, ये क्या रिपेयर करवाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजेस टू ओन एम्प्लॉइज टू कंस्ट्रक्ट न्यू, क्या है, लोडिंग बे कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं बना रहे हैं ना, मटेरियल्स फॉर न्यू लोडिंग बे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीगल फी फॉर प्लानिंग परमिशन, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस एक ही सिर्फ स्ट्रक्चरल रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी सारे कैपिटल। ठीक है, ये उसने कहा है बस। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचा। अगला सवाल आप घर में खुद कर लेंगे, कौन सा पेपर का है नीचे लिखा होगा, अच्छा ये लिखा नहीं हुआ तो इसका आप खुद नोट कर लें, ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 23, नहीं आखिरी सवाल तो आपके, हाँ जी वो भी आपने करना है, तो किसी साल का नहीं है, नहीं ये अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 20-23 का क्वेश्चन है, इसमें भी अकाउंट बनाना आ गया था और मिशर कैपिटल ऐसे लिखेंगे, अक्टूबर नवंबर 23 का क्वेश्चन है आखिरी। इसकी पिक्चर नहीं बेटा, बेटा इस क्वेश्चन की पिक्चर नहीं, चलिए जल्दी करें, पिक्चर लें इसकी जल्दी से, पिक्चर लें इसकी, पिक्चर नहीं बेटा, सो पिक्चर लो, पिक्चर लो, नहीं नया क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पिक्चर लें, जल्दी इसकी पिक्चर लें, बुक में नहीं है, जल्दी करें हो गया, आप ग्रुप में भेज देना, ग्रुप भेज दें आगे, उधर से क्लियर नहीं आ रही, इधर से सही आगे
ओके बस यही है, बस हो गया सर बाकी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते सर। हेलो बस हो गया, 200 का तीसरा ही है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कामयाब करे, घर में सॉल्व करें क्वेश्चंस, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल HKB। वेल डन, वेरी गुड। और कोई मसला हो तो व्हाट्सअप करें मुझे, और क्या हो उसे कहते हैं, शेयर करें इसको। लाइक हुसैन, गुड टू सी यू इन द क्वेश्चन। मेरा ख्याल है समझ आई होगी आपको, हुसैन समझ आई है? यस सर। वेरी गुड यार, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे।